Good morning, students. Today we'll discuss about the equilibrium constant. First of all, we should know what is equilibrium. That was the chapter in +1. That when the concentration of the reactant and product does not change with time, means जितना आपका रिएक्टेंट है और जितना प्रोडक्ट है वो उसका अमाउंट सेम रहे। जितना रिएक्टेंट चेंज हो प्रोडक्ट में तब उतना ही प्रोडक्ट चेंज हो जाए रिएक्टेंट में। दैट कंडीशन इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम। एंड इन द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। एंड वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट by using the Nernst equation also. See, Nernst equation was for the calculation of cell potential or EMF. तो E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n into log of product and reactant. Now see, इसको थोड़ा modify करते हैं। When the concentration will not change, it means cell will not work. At this condition, current will not flow through the cell because there is no change in concentration. Because cell कब काम कर रहा था? जब जिंक के आयन प्रोड्यूस हो रहे थे, it means जिंक concentration was increasing. और जो कॉपर के जो आयन्स थे वो चेंज हो रहे थे कॉपर के अंदर, तो कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन थी डिक्रीज हो रही थी। लेकिन अगर वो दोनों कंसंट्रेशन सेम रहें, इट मीन्स आपका जो सेल है उसमें करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ई सेल विल बी जीरो एट दैट पॉइंट। दैट्स वाई इट विल बिकम ई सेल इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.0591 divided by n into log Kc, not reactant product, because log Kc means the concentration of product and reactant at the equilibrium point. So equilibrium constant will be calculated when equilibrium is achieved. That's why product over reactant concentration becomes equal to log Kc. And what is log Kc means how to calculate equilibrium constant Kc value to make that formula. And then इसको आप इधर ले जाओगे तो E cell is equal to 0.0591 upon n into log Kc. It means log Kc is equal to E naught cell, ये यहाँ पहुँच जाएगा, into n डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 0.0591. It is the formula to calculate the equilibrium constant. So equilibrium constant is calculated when the cell does not work, it is in equilibrium condition, the reactant and product concentration does not change with time. And ये आपको फॉर्मूला क्रैम करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने यहाँ ई सेल की वैल्यू को जीरो अप्लाई किया और इसको log Kc लिखा तो आपके पास Kc की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको भी फाइंड कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन ज़रा ट्राई करते हैं जो आपके पास दिया होगा। सी हेयर, क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट मीन्स Kc निकालना है, log Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स log सिंपली Kc। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the given reaction? Cu2 2Ag positive is equal to Cu2 positive and Ag, and value of E cell is given. E naught cell value is given, it is 0.46. Now we know the formula जो हमने अभी derive किया था, log Kc is equal to E naught cell into n डिवाइड बाई 0.0591. ऑल्दो यहाँ पर 0.059 दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो राइट। नाउ
E naught cell value is 0.46 into N value. See, copper is losing 2 electrons and silver is positive, but 2 silver are there, it means they will gain 2 electron. It is losing 2 electron. The value of N should be 2 because there is oxidation reduction of 2 electrons. 0.0591, it is the value of log Kc. Now अगर आपके पास log Kc आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है आपके पास log Kc वैल्यू जो है आपके पास आ गई है 15.5932, ये आपको इतनी वैल्यू आ जाएगी log Kc की। अब जब आपके पास कभी भी log की वैल्यू दी हुई हो, यहाँ पर log की वैल्यू दी हुई है, तो अब आपको log नहीं निकालना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एंटी लॉग। कैसे होगा? जिस एंटी लॉग मीन्स log का उल्टा, इसका मतलब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन लॉग एंटी लॉग, और यहाँ पे लिख देंगे हम एंटी लॉग, और 1 अपॉन लॉग मीन्स एंटी लॉग। तो लॉग से लॉग कट जाएगा। इट मीन्स Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.5932। आफ्टर दिस आपको एंटी लॉग की वैल्यू न्यूमेरिकल में ही दी होगी, और किसका एंटी लॉग दिया होगा? नॉट 15.5 आपको दिया होगा जो डिजिट डेसिमल के बाद है। इसका कोई आपको हिंट नहीं मिलेगा, यू हैव टू यूज़ दिस थिंग। आपको एंटी लॉग दिया होगा 0.5932 का, और वो होगा आपके पास इस क्वेश्चन के मुताबिक इट शुड बी 3920। ये वैल्यू आपको मिलेगी 3920 पॉइंट, कोई पॉइंट्स में मिलेगी 0.3920। इट मीन्स ये अब आप करना क्या है, आप लिखना है 0.3920 इंटू जो पॉइंट से पहले वाले डिजिट हैं। अगर ये 1 होता तो उसको 2, यहाँ क्या लिखा है 15, 10⁻⁻16। एक पावर को इंक्रीज करके उसको आपने 10⁻⁻ में कर देना है। जितना भी आप, अगर आप 4 लिखा होता तो 10⁻⁵, अगर यहाँ 9 होता तो 10⁻10, ऑल्दो 15 है तो 10⁻16। एंड आंसर को लिखते हैं हमेशा हम एक 1 डेसिमल पॉइंट में, साइंटिफिक नोटेशन, दैट्स वाइज 3.920 इंटू 10⁻15। ये आपके पास log Kc की वैल्यू आ गई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ log Kc। एंड इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास दिए होंगे सॉल्व करने के लिए। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जिन्होंने नॉन-स्टिक इक्वेशन की है दे कैन easily do this question. And after this last topic regarding this non-stick equation, that is E delta G. We know delta G is known as Gibbs energy, Gibbs free energy, and इसका फॉर्मूला आपने +1 में किया होगा। डेल्टा G इज इक्वल टू -NF E सेल। अगर यहाँ पर उसने पूछा कि आपको निकालना है डेल्टा नोट G, देन यू राइट हेयर E नोट सेल। अगर वो कहता है कि कैलकुलेट डेल्टा G, देन फॉर्मूला विल बी डेल्टा -NF E cell. If in the question delta it is not here, then put E naught. If in the delta G naught is not there, then E cell will be without the naught. It depends upon कि क्या पूछा है उसने कैलकुलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ये आपका सेल है कि 2Fe3 पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव है, 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव आयोडाइड आयन इज इक्वल टू 2Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन प्लस आयोडीन I2। E नोट सेल दिया है। द वैल्यू ऑफ E नोट सेल इज गिवन, इट इज 0.236। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मीन्स डेल्टा G नोट, standard means delta naught G, it means standard, and because here E naught cell is given also. Calculate the delta standard gives energy and equilibrium constant of the
सेल रिएक्शन। आप इसको दोनों निकालने हैं, डेल्टा जी भी निकालना है और log Kc भी निकालना है। फर्स्ट डेल्टा जी, वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ E naught cell. E naught cell is given here. N value, see here, -1, it means it is gaining 1 electron. 2I are there, it means it will gain 2 electrons. And same way, Fe3 positive is changing into Fe2 positive. It is losing 1 electron. 2 Fe are there, it means 2 electrons are being lost by this Fe3 positive. That's why value of N will be equal to 2. That's why -2 into F की वैल्यू फिक्स होती है 96,500, ये पुट करनी है, इंटू E नोट सेल दिया है 0.236 एंड यू विल गेट द डेल्टा जी हेयर। ओके, एंड इट शुड बी इन किलो जूल पर मोल। इसकी आपको यूनिट लिखनी है किलो जूल पर मोल। तो ये तो हो गया आपका डेल्टा जी। ऐसे ही इसने कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिराइव करना है, एंड वी नो दैट आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है log Kc इज इक्वल टू E नोट सेल इंटू एन डिवाइड बाई 0.059, जीरो ही कर देते हैं। ओके, नाउ Kc आपको निकालना है, तो log Kc इज इक्वल टू E नोट सेल दिया है 0.236 इंटू एन की वैल्यू 2 दी हुई थी आपको यहाँ, तो 0.0590। नाउ वो जस्ट इसको अभी देख लेते हैं और सोल्व करने के लिए आपका। सो इट्स हेयर log Kc E नोट सेल दिस 2 इंटू दिस, you will get Kc is equal to, and means log Kc is equal to 7.981। नाउ यहाँ पे आप log काट करके यहाँ पे लिख दोगे एंटी log, इट मीन्स आपको एंटी log निकालना है 7.981.98 वैल्यू विल बी गिवन टू यू, दैट विल बी इक्वल टू 0.57, और यहाँ पे आप इसको 10⁸ कर दोगे, और टू मेक इट 9.57 दिस। सो इस तरीके से आप डेल्टा जी एंड सेल पोटेंशियल दोनों निकाल सकते हैं। एंड दिस ईयर आपकी बार नॉन-स्टिक इक्वेशन क्वेश्चन नहीं आया था, बट दिस क्वेश्चन ऑफ डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज गिवन। ओके, now we'll just do a practice of some more questions like here. Determine the minimum potential difference needed for the reduction of 2/3 Al2O3, and delta G is given here. Delta G is 960 kilojoule. Okay, now रिडक्शन इसकी जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, Al2O3 विल चेंज इनटू एल्यूमिनियम आयोन प्लस ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगी। मीन्स रिडक्शन का मतलब होता है उसमें से ऑक्सीजन का अलग हो जाना, एंड इट मीन्स आपके पास यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम दिए हुए हैं, 2 एल्यूमिनियम, एंड वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव विल फॉर्म, और ये कितना है आपके पास ऑक्सीजन 3 हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पर कोई आपके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर दैट हमें यहाँ देखना पड़ेगा, देखो रिएक्शन इज दिस 2/3 Al2O3, 1 एल्यूमिनियम इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स 2 एल्यूमिनियम विल लूज 6, बट कितना Al2O3 दिया हुआ है 2/3, इट मीन्स 2/3 इंटू 2 एल्यूमिनियम विल लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट मीन्स it will 2/3 Al2O3 will lose 4 electrons, aluminium will lose 4 electrons, and 2/3, अब देखो आपको निकालना होगा दूसरे तरीके से भी। we know oxygen will take 2 electron,
सो 2 × कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 3, ओके। एंड इसको आप कितने, अब ये 2/3 तो वो इसके लिए भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2/3, वैल्यू इज़ 4। सो आपको यहाँ n की वैल्यू 4 मिल जाएगी। डेल्टा जी अब निकालना क्या था आपको यहाँ पर, सेल पोटेंशियल ई नोट सेल। अब ई नोट सेल निकालने के लिए आपको यहाँ पर डेल्टा जी दिया हुआ है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल, वी नो ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास कैसे निकलोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल, एफ की वैल्यू 96,500, एन की वैल्यू 4 आ गई। डेल्टा जी दिया हुआ है बट सी हेयर डेल्टा जी इज गिवन इन किलो जूल, ओके। एंड जो वैल्यू पुट करते हैं हम एफ़ की 96,500 कूलम, वो होती है हमारी जूल्स के लिए। तो आप किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दोगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द 1000, ठीक है। एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल। एंड इन द सेम वे a large number of questions are given, means 1 2 3 4 5 pages of this numerical practice is given because बहुत हाई चांस है कि आपके पास इसमें से क्वेश्चंस आएँ। तो आप अब इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। एंड टुमारो विल डिस्कस द अदर टॉपिक दैट इज लिंक्ड विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।